Science worksheets, safety and first aid, page number 127. Question number 1, worksheet 1. Indicate whether the following statements are true or false. बताना है true है या false है. Write the correct statement in the space provided. अगर false है, then what will be the correct statement? A person who has met with an accident needs immediate attention. अगर जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसको एकदम इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है या नहीं? इसका आंसर होगा ट्रू. हमें एकदम इमीडिएट अटेंशन उसको देनी होती है. Question number 2, the immediate help given to sick or injured person is known as first aid. This is also true. जो immediate help दी जाती है injured person को, उसको हम first aid बोलते हैं. Then number 3, first aid can increase the pain of the patient till the doctor arrives. अगर हम किसी injured person को first aid देते हैं तो उससे उसका पेन बढ़ जाता है जब तक डॉक्टर आता है. तो दिस इज फॉल्स. नो, पेन बढ़ता नहीं है. फर्स्ट एड कैन रिलीव द पेन. इनफैक्ट कम हो जाता है उससे पेन, हो सकता है, टिल द डॉक्टर अराइव्स. ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट एड कैन रिलीव द पेन टिल द डॉक्टर अराइव्स. नंबर 4, it is not important to wash your hands with soap and water before giving first aid. First aid देने से पहले आपको अपने हाथ धोना जरूरी नहीं है. This is also false. Always wash your hands with soap and water before giving first aid. First aid देने से पहले हमेशा हमें अपने hands को wash करना चाहिए. Number 5. If a wound means घाव, cut has been caused due to a rusted piece of iron, जो जंग लगा हुआ लोहा होता है, rusted piece of iron उसको बोलते हैं. तो अगर उसकी वजह से कोई जख्म या घाव हुआ है, कोई कट लगा है, then an anti-tetanus injection is required. Yes, it is also true. अगर कोई भी हमें चोट लगती है आयरन की वजह से तो हमें एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवाना होता है. Then when a part of body gets twisted and swells up, it is known as sprain. This is true. अगर कोई बॉडी का पार्ट ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है या फिर सूज जाता है तो उसको हम स्प्रेन बोलते हैं. Number 7, to reduce a swelling caused because of a sprain, you can dip the body part in warm water. This is false. गर्म पानी में नहीं करना चाहिए हमें. In fact, apply ice cubes or an ice pack on the joint to reduce the swelling. Swelling को कम करने के लिए ice pack लगाना चाहिए. Number 8, if a person suffers from a nose bleeding, a wet handkerchief needs to be kept on the person's nose till the bleeding stops. अगर किसी की नोज से ब्लीडिंग होती है तो हमें वेट हैंकरचीफ यानी कि गीला रुमाल उसकी नोज पर रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग कम हो सके. एंड दिस इज ट्रू. इसमें वर्कशीट 2 में आपको टिक के ऑप्शंस करने हैं. जो करेक्ट है उस पर टिक राइट करना है और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस करना है. Place correct against the statements that needs to be done under the condition mentioned and a cross against statement where they are incorrect. Number 1, fires can be put out by using special devices known as fire extinguishers. फायर को हम
रिमूव कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से, एंड दिस इज करेक्ट. If a paper or wood is on fire, throw water or sand over it. Put out the fire. अगर पेपर या लकड़ी में आग लग जाती है तो हमें उस पर सैंड थ्रो करनी चाहिए, एंड दिस इज करेक्ट. थर्ड, यूज अ मैच स्टिक टू लाइट अ गैस स्टोव एंड नॉट अ लाइटर. हमें गैस स्टोव जलाने के लिए मैच स्टिक का यूज करना चाहिए, लाइटर का नहीं. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है. हमें जितना ज्यादा हो सके लाइटर का यूज करना चाहिए. नंबर 4, in case of a fire you need to call the hospital emergency immediately. अगर फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, एंड दिस इज करेक्ट. देन नंबर 5, do not keep or use medicines that have crossed their expiry date. जो मेडिसिन होती है जिनकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी होती है उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए. दिस इज करेक्ट. In case of any poisoning, make the victim vomit so that the poison is expelled from the body. अगर किसी विक्टिम ने पॉइजन खा लिया है तो हमें उसको वॉमिट करवाना चाहिए ताकि जो पॉइजन है, जहर है, वो उसकी बॉडी से बाहर आ सके. दिस इज करेक्ट. देन wear only synthetic clothes in the kitchen or while burning crackers. जब हम पटाखे जला रहे होते हैं या फिर किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने चाहिए. दिस इज रॉन्ग. हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. नंबर 8, if a fire has been caused due to an electric short circuit or petrol, throw sand or mud over it, not water. अगर आग जो लगती है वो इलेक्ट्रिक शॉर्टकट से लगती है, शॉर्ट सर्किट से, या फिर पेट्रोल से लगती है, तो हमें उस पर रेत या मिट्टी डालनी चाहिए, पानी नहीं. दिस इज करेक्ट. Then if someone's clothes catch fire, cover the person with a blanket. अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें उस व्यक्ति को ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, और thick cloth to extinguish the fire. Yes, correct. Keep important phone numbers with yourself, such as those of the nearest doctor, police station, the department and the chemist. इनके नंबर्स हम अपने पास रखने चाहिए, एंड यस, रखने चाहिए, इमरजेंसी में यूज होते हैं. वर्कशीट नंबर 3, ड्यूरिंग फेस्टिवल स्टे अवे फ्रॉम द क्रैकर्स. ये अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमें स्क्रैम्बल करना है, और यहाँ पर हिंट्स गिवन है. आप इजीली इसकी स्पेलिंग यहां से देखकर लिख सकते हैं. नंबर 1, क्रैकर्स, देन as they can be very dangerous. जो फेस्टिवल सीजन होता है हमें उसमें क्रैकर से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं. कीप ऑल मेडिसिन्स फार अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को दूर रखना चाहिए. When a person is bitten by a snake, do not move the victim as movement will cause the poison to spread fast in their body. अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो हमें उसको, उस पर्सन को ज्यादा मूवमेंट नहीं करवानी चाहिए क्योंकि उससे उसकी बॉडी में बाकी पार्ट्स में भी जहर जल्दी से फैल सकता है.
Number 4, a fractured bone should be given support with the help of a splint. जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसको हमें सपोर्ट देनी चाहिए और जिससे देते हैं हम उसे बोलते हैं स्प्लिंट. Number 5, before giving first aid, we need to wash our hands with soap and water to remove germs. फर्स्ट एड देने से पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप ताकि जर्म्स रिमूव हो सकें. Number 6, an antiseptic cream can be applied on a wound to prevent infection. कोई जख्म होता है तो हमें उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो. In case of a sprain, number 7, in case of a sprain, tissues around a joint get injured or swell up. अगर हमारी बॉडी में स्प्रेन होता है तो हमारे जो जॉइंट है उसके आसपास के टिश्यूज में स्वेलिंग आ सकती है. Number 8, an injury caused by rusted iron can result in a tetanus infection. कौन सा इन्फेक्शन होता है वो? टिटनेस. अगर आयरन से कोई चोट लगती है तो लोहे से. When a bone is in the body breaks or cracks. Number 9, when a bone in the body breaks or cracks, अगर कोई हड्डी टूट जाती है या क्रैक हो जाती है, it is called a fracture. उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर. Number 10, rabies is a disease caused due to animal bites. रेबीज एक डिजीज है जो कि एनिमल के काटने से होती है.